Hi and welcome to this video. In this video, we are going to talk about the culture of poverty. And the question that we're going to ask ourselves is, are the poor people really responsible for their own poverty? Or is it everything else within the system? Who is responsible? Let's answer that question. So we have Oscar Lewis, who's done research on that very question. And he's given this concept called the culture of poverty. So Oscar Lewis says, well, basically, that the poor are responsible for their own poverty. Why does he say that? He says, well, the poor have a distinct set of characteristics. कुछ ऐसे उसमें पुअर गरीबों में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं that they are the ones who end up maintaining and sustaining the situation of poverty. How is that the case? So he says that for the poor, at the level of the individual, there are certain characteristics that the poor show. That there is a certain level of desperation, abandonment, मतलब सब कुछ पे गिव अप कर दिया जैसे, abandonment, desperation, fatalism, मतलब फ्यूचर को लेके एक नेगेटिव आउटलुक, pessimism. There is a certain kind of focus on present time orientation. Present time orientation. एंड लैक ऑफ कैपेसिटी टू डेफर टू द फ्यूचर, मतलब कि कल को लेके इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कल को लेके सोच नहीं पा रहे हैं, और जितना भी है वो आज को लेके ही सारा फोकस है लाइफ के अंदर कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर टुडे, राइट? सो ही सेज दैट देयर इज दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड of abandonment and fatalism, of giving up on things and of not believing in tomorrow, living for today. और इस तरह के एटीट्यूड की वजह से जो गरीब हैं वो गरीब हैं क्योंकि वो कल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. दे नॉट इन्वेस्टिंग इन टुमारो. सेकेंड, ही सेज एट द लेवल ऑफ द फैमिली, at the level of the family, the poor have a high degree of abandonment of women and children. Abandonment of women and children, मतलब वाइफ को, बच्चों को अपने पर छोड़ देते हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं, और मैट्रीफोकल फैमिलीज. मैट्रीफोकल फैमिलीज का मतलब है कि मदर इज द सेंट्रल फिगर और अराउंड द मदर, बिकॉज फादर एक एब्सेंट फिगर रहते हैं ऑफन, द फादर इज ऑफन नॉट देयर. तो मैट्रीफोकल फैमिलीज हैं और ज्यादातर जो मदर्स रिलेटिव्स उनकी जानकारी है. मदर्स रिलेटिव्स आर द किन्स, आर द रिलेटिव्स इन द सर्कल. तो मदर के साइड के रिलेटिव्स की ज्यादा जानकारी है, और फादर क्योंकि एब्सेंट फिगर है तो फादर के साइड के रिलेटिव्स की भी जानकारी बहुत कम है. तो एट द फैमिली लेवल दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट द पुअर टेंड टू हैव. थर्ड, ये कहते हैं एट द कम्युनिटी लेवल. एट द कम्युनिटी लेवल काफी ज्यादा आइसोलेशन ऑस्कर ल्यूइस नोट करते हैं. वो कहते हैं कि पार्टिसिपेशन काफी कम है, the participation is quite low of the poor in various different organizations that are available. वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस उनके कम हैं, उनका बैंक्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर उन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का यूजेज कम है, ये आर्ट गैलरीज में नहीं जाते हैं. ये जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, दे आर नॉट मेकिंग सफिशिएंट यूज ऑफ द existing abilities or existing facilities, whether those be parks or whether those be departmental stores with fresh produce, or these be banks or hospitals. So the poor are making very less
use of them. So that means they're in a sense aloof. ये अलग हैं, ये सोसाइटी के मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन से ये एक तरह से आइसोलेटेड है. So these characteristics together, according to Oscar Lewis, are what are causing the poverty of the poor. That the poor remain in poverty because these are the characteristics. And with those characteristics, these are poverty maintaining and sustaining. They are poverty perpetuating. Maintain करते हैं, sustain करते हैं. तो there is this another guy, Walter B. Miller. There is this another guy, Walter B. Miller. ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी रिसर्च किया अमेरिकन गरीब सोसाइटीज में, एंड he found out something similar on the lines of what Oscar Lewis in his concept of culture of poverty is saying. तो ये भी कुछ सिमिलर बात करते हैं. ऑस्कर ल्यूइस कहते हैं, वॉल्टर मिलर कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है जैसे ऑस्कर ल्यूइस कह रहे हैं. इट इज समथिंग ऑन दोस पैटर्न्स. एंड व्हाट इज दैट? ही सेज कि हम यहां पर जो ही फाइंड्स आउट दैट इन द अमेरिकन स्लम्स, तो अमेरिकन स्लम्स को घेटोस बोलते हैं अमेरिका में, यूएसए में. द अमेरिकन स्लम्स आर रेफर्ड टू एज घेटोस. घेटो. और ही सेज कि वहां पे क्या है अमेरिका में कि देयर इज एन एम्फोसिस ऑन मैस्कुलिनिटी एंड टफनेस. सेज अगर हम लोअर क्लास कल्चर देखें तो लोअर क्लास कल्चर में मैस्कुलिनिटी एंड टफनेस, कल्चर एम्फोसाइजिंग ऑन सीकिंग थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट. थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट कि भाई हमको तो एक्साइटमेंट चाहिए, एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए, rather than focusing on hard work and effort. तो हार्ड वर्क और एफर्ट के ऊपर फोकस नहीं है ग्रो करने के लिए. रादर दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ फोकस ऑन लक एंड फेथ कि भगवान सब सही कर देंगे, खुदा कर देंगे, मतलब दैट गॉड is going to bring better days to them, rather than them investing, the poor investing in hard work and effort. So you will find that there's a lot of lottery ticket kind of buying कि भाई lottery खरीद रहे हैं या भगवान ऐसा कर देंगे, right? So stuff like that, believing in luck and faith. And he says with this kind of a culture, and also he notes that the level of community participation is quite low, that collective organizational ability is low. And so thereby, right, they are with the high level of individuality alongside the existing marginality, मतलब जिसमें कि वो they're not जैसे equal participant in society, already उनके पास unequal structures का access है. तो इन कंडीशंस के अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज द केस. और वॉल्टर बी मिलर एक्सप्लेन भी करते हैं कि मतलब ऐसा क्यों है, व्हाई इज दैट द केस, कि इस तरह का कल्चर क्यों है. ही सेज इट इज क्वाइट फंक्शनल फॉर देम, यूजफुल है गरीबों के लिए. फंक्शनैलिटी ही पॉइंट्स आउट. क्या फंक्शनैलिटी है? हाई बोर्डम टॉलरेंस and capacity to find life satisfaction outside of work. तो आप देखें कि जो बेटर ऑफ वेल ऑफ लोग होते हैं उनके पास करियर्स हैं, वो करियर में स्किल ग्रोथ होती है, वो एक स्किल सेट से दूसरे स्किल सेट पे जाते हैं, उनके डेजिग्नेशंस चेंज होते हैं, उनके रोल्स चेंज होते हैं, दे सी देमसेल्व्स एज इवॉल्विंग. और वो जो एक ड्राइवर है वो 20 years 30 years वो ड्राइविंग ही कर रहा है. जो somebody who's working as a plumber या कोई मशीन पार्ट्स रिपेयर कर रहा है, वो अपने लाइफ 30 years 40 years जो भी वर्किंग लाइफ है वो वही कर रहा है. कोई गन्ने वाला है, वो बोल रहा है मैं 30 साल से गन्ने का जूस ही निकाल रहा हूँ.
Point being that there is a high degree of monotony, repetition within the work life of the lower class society members. तो फिर वो क्या करें? तो they are projecting that need in their लाइफ आउटसाइड ऑफ वर्क, तो वहां पर वो हाई लेवल ऑफ थ्रिल और एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ में तो है नहीं, करियर्स नहीं है, जॉब्स हैं, एंड सो देयर इज हाई बोर्डम टॉलरेंस. तो जॉब के ऊपर दे आर एबल टू टॉलरेट द बोर्डम एंड फाइंड लाइफ सेटिस्फैक्शन आउटसाइड ऑफ वर्क. तो वहां पर वो सारी नीड्स जो हैं, जो वर्क पे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, वो बाकी की लाइफ में वो जाके फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज द cultural emphasis according to Walter B. Miller. So he finds it to be functional, well suited or better suited to the needs of the lower class society. So far what we've seen is coming from Oscar Lewis and Walter B. Miller. Both of these people have this undertone, this sense where they're saying कि एक तरह से गरीब अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पर्सोना, जो ट्रेट्स हैं, जो तरीके की उनके प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरली इंटीग्रेटेड जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरह की हैं कि वो उनको गरीबी में मेंटेन करके रखती हैं. तो एसेंशियली इस व्यू पॉइंट को मानने से क्या होता है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वेलफेयर स्कीम्स में करप्शन सिग्निफिकेंट है, या इनएक्शन है ऑन द ग्राउंड, या फिर हमने डिजाइन नहीं की हमारी वेलफेयर स्कीम सही तरीके से. ये सारी चीजों से फोकस हट जाता है डिस्कशन के अंदर, और डिस्कशन इस बात पर आता है कि गरीब लोग, उन्हीं की गलती क्या नहीं है, that maybe they're the ones responsible for everything that is happening in their circumstances, or most of the things that are happening to them. And so basically it takes the focus away from high level corruption or design issues with regards to welfare schemes, and brings the focus to the poor themselves and their own onus on it. So then there is obviously the other perspective to this, the perspective which says we can't really blame the poor totally or entirely or in large part for their own poverty. So there is the criticism to the culture of poverty theory. There are people, like there is this guy called Kenneth Little. Kenneth Little ने रिसर्च की वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस के अंदर, and he found that the level of community action and voluntary organization proliferation, मतलब कि जो सेल्फ हेल्प टाइप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोलिफरेशन मतलब पेनिट्रेशन की कितनी है, कितनी फैली हुई है, प्रोलिफरेशन ये हाई है. मतलब कि ऑस्कर ल्यूइस ने कहा था और वॉल्टर बी मिलर ने भी कहा था कि कम्युनिटी एक्शन कम है, ऑर्गेनाइज नहीं है कम्युनिटीज. तो ही फाइंड्स आउट विद हिज रिसर्च अ डिफरेंट रियलिटी. इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है. एंड सेकेंड वी हैव विलियम मैंजन. एंड विलियम मैंजन स्टडीड द Berriadas of Peru. Berriadas of Peru. तो पेरू एक कंट्री है लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और यहां पर जो शैंटी टाउन्स हैं, जो ऐसे मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, जो रिफ्यूज मटेरियल यूज करके जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, इनको शैंटी टाउन्स बोलते हैं, मतलब कि टूटे हुए पुराने घर जैसे. और ये शैंटी टाउन्स जो कि स्लम्स हैं एक तरह से, उनको बरियाडोस बोलते हैं वहां पे, बरियाडोस पेरू में. तो स्लम्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाते हैं. सो इन यूएसए दे आर कॉल्ड ghettos, and in India obviously we call them slums, and in Peru they call them bariados, right? So in these bariados, William Mangan did a research in these bariadas, and he found out that again community participation is high and political participation is also quite high.
तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी काफी पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल एक्शन भी काफी है। अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी जो गरीब लोग हैं वो पॉलिटिकली तो काफी एक्टिव रहते ही हैं। और हम देखें कि जो स्लम्स का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अर्बन एरियाज के अंदर तो काफी हाई रहता है, मतलब 90-95% या उससे भी ज्यादा हाई पोलिंग रहेगी इलेक्शंस के दौरान, जबकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिटी इज गोइंग टू ऑफन पोल क्वाइट लेस। तो बाकी एरियाज में 30% 40% पोलिंग परसेंटेजेस, बट स्लम्स के अंदर काफी हाई, जिससे कि वी सी दैट जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है अमंगस्ट दी voters who are of the lower class category is rather quite high, right? So these are effective criticisms to what Oscar Lewis and वॉल्टर बी मिलर नोट इन देयर वर्क। उन्होंने जो कहा ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो पहला तो ये एक डाइवर्स पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग जो कम्युनिटीज के अंदर डिफरेंट रियलिटीज हैं। आफ्टर दैट जो सेकेंड मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है of difference with the idea of what Oscar Lewis is saying and what Walter B. Miller is saying is on the issue of culture. मतलब इन्होंने जो ये वर्ड यूज किया ना, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि देर आर सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स। सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स हैं कि देर आर लिमिटिंग फैक्टर्स इन दी सिचुएशन, कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, इन्फ्लेशन है, घर अवेलेबल नहीं है, दैट देर आर लिमिटिंग सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट The poor are responding in the way that they are responding. उनका सिर्फ एक intelligent reaction है to their own situation. वो क्यों behave कर रहे हैं in the way that they are behaving? They are simply responding to the constraints of their situation. ऐसा नहीं है कि कोई cultural preference है या कोई value preference है towards a certain set of practices की abandonment को लेकर, fatalism को लेकर, desperation को लेकर, dependency को लेकर, right, a sense of inferiority को लेकर कोई value preference है उनका, ऐसा कोई value preference नहीं है। They are responding to their situation. So thereby the criticism is saying that if the external constraints are removed, अगर जिन कारणों से गरीब लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो हट जाए, माने कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सुधर जाए, जो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल तरीके से मिलने शुरू हो जाए, अगर बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट्स मिलने शुरू हो जाएं, वेजेस को बेटर रेट्स मिलने शुरू हो जाएं, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बेटर वर्क करने लगे, तो अगर जो लिमिटिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर इफ वी आर एबल टू रिमूव दो सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स, देन द पुअर विल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज दीज आर इंटेलिजेंट पीपल सिंपली रिस्पॉन्डिंग टू देयर सिचुएशन। तब फिर उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। कोई कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है। कल्चरल प्रेफरेंस का मतलब होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बी योर सिचुएशन, क्योंकि हमारे तो वैल्यू प्रेफरेंस है, पीपल विल बिहेव इन दीज मैनर्स व्हिच विल रीइंफोर्स देयर पॉवर्टी। And the criticism is that it is not a value preference, it is not a cultural preference, it is simply an intelligent response to their situation. If the situation changes, the response will change. Then, third, एक स्टडी है एलियट लीबो की। सो एलियट लीबो की एक स्टडी है, उसका नाम है टैलीज कॉर्नर। टैलीज कॉर्नर एंड एलियट लीबो स्टडीज द स्ट्रीट कॉर्नर मैन, जो जैसे गली नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं। ये अमेरिकन कंटेक्स्ट में है। तो स्ट्रीट कॉर्नर मैन, एलियट लीबो स्टडीज द स्ट्रीट कॉर्नर मैन, और आफ्टर स्टडिंग दैट एलियट लीबो सेज के पहले तो जो मैन लोअर क्लास सोसाइटी का पार्ट है उसने भी मेन स्ट्रीम वैल्यूज इंटरनलाइज की हुई हैं। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट किया हुआ है, मेन स्ट्रीम वैल्यूज उन्होंने भी इंटरनलाइज की हुई, मतलब एक्सेप्ट की हुई है। वो भी चाहते हैं
कि ब्रेड विनर का रोल, केयर टेकर का रोल, जो फैमिली में मेन मैन का रोल होता है, that they be able to do it. However, the central problem with them is that they are consistently unable to do that because their incomes are insufficient to play the supportive role for their wife and children. So they are daily faced with failures. तो ऐसे में soon they abandon their wife and children and find company इन दोज हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, मतलब अपने जैसे ही और जो उन मेन हैं, जो लोग हैं जो कि जॉबलेस या अबैंडनमेंट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन के बाद घूम रहे हैं स्ट्रीट कॉर्नर पे, ये उनकी कंपनी ढूंढते हैं. और दिस इज जस्टिफाइड बाय द थ्योरी ऑफ मैनली फ्लॉज. तो ये जो लोग हैं, दे जस्टिफाई देयर फेलियर, क्वेश्चनिंग देयर फेलियर, cushioning their failure and essentially making it look like success. And essentially making it look like success. With this theory of manly flaws, कि वो कहते हैं कि men have a need for sexual variety and gambling and swearing and drinking alcohol and violence. ऐसा ये कहते हैं. This is what they say. And which is why they make it look like, oh, you know, that family wasn't the right institution to fit, and so we've abandoned them. Right? Elliot Lebo says the reality is that if we try to live with failure on a daily basis, it is quite difficult and hard. So people just find it opportunistically easy to simply give up on trying to fulfill responsibilities daily when you're failing at them and turn it over its head and say, I don't want to do it anyway. कि मुझे करना ही नहीं है. फर्ज करो आप देखें कि अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, है ना, और कोई आपको बोले तुम ये नहीं कर सकते, तो आप अगर अंदर सेल्फ डाउट है, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो काफी बार आप ये कहने की जगह कि हाँ मैं कोशिश करता हूं और फेल हो जाएं, और वो बार बार जब आप ट्राई कर रहे हो और फेल हो रहे हो, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में? वो आके कहेंगे मुझे करना ही नहीं है, व्हाई वुड आई डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट. तो what is this? It is an attempt to mask our failure by turning it over its head and saying, I don't want to, right? It is, I think it is undesirable. So Elliot Lebo says that the men do want, as part of the mainstream family values, to take the role of the breadwinner, the food provider, but since their income is short on that and they're consistently failing, they turn their failures over its head, citing this theory of manly flaws, and make it look like success, cushioning their failure. So, having talked about this, we have considered this perspective that the criticism of Oscar Lewis and Walter B. Miller's theory is that, first of all, community participation, political activism does exist in many communities. And second of all, that culture isn't really there. It's more of a situational constraint response. Thirdly, that mainstream roles are valued. It's just that people with insufficient incomes are not able to fulfill those mainstream roles. Right? So, what is the final word on this? With regards to the fact who is responsible, maybe what we can say is if we change with welfare schemes the situational constraints, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कम है, वेलफेयर स्कीम्स में जहां पे मे बी डिजाइन फ्लॉ है, मे बी हो सकता है लास्ट माइल करप्शन हो या बिग टिकट करप्शन हो, दैट वॉट एवर इश्यूज एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग्स, या एमिनिटीज प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो इफ यू आर एबल टू एड्रेस दी सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स, देन there will be change in the poor's behavior as an intelligent person. However, that may be after a lag time.
after something that we call cultural lag. सिचुएशन चेंज होने के बाद माइंडसेट चेंज होने को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग. एंड सो आफ्टर पीरियड ऑफ कल्चरल लैग, बिकॉज there are some elements of internalization when you continue to live with your situation, maybe of constraints, then you draw some lessons and those lessons are internalized and then they get passed down to the next generation which also learns it and forms habitual behavior. तो सिचुएशन चेंज होगी तो रिएक्शन चेंज होगा, पर उसको चेंज होने में कुछ समय लगेगा. इन द मीन वाइल वी शुड डू what we are bent at doing, removing those constraining situations. Well, this is what we have learned in this lecture. See you in the next one.